Hello, dear viewers. A very warm welcome to our last and final session in the Partnership Accounting Dissolution of Partnership Firm. This is our third and final session in regard to dissolution of a partnership firm. So, in today's session, the topics that we are going to discuss are difference between realization and revaluation account, then treatment of some special items, some key points that anyone should keep in mind while dealing with a question related to dissolution of a partnership firm. Then we have presented the summary of entire chapter or all the three sessions, what we have discussed and what we have gone through so far. And then towards the end, we have presented the format of partners capital account, partners loan account, and cash account. So without wasting any time, let's begin. Differentiation between realization account and revaluation account. So as I have shared in some earlier sessions also, whenever you come across a question where you need to differentiate between two items, it is always advisable to present the differentiation in a tabular format because of two reasons. Number one, it saves your time. When you are writing in paragraphs, then obviously you need to use some conjunctions and you need to be focused on formatting the sentences and all. But when you are presenting it in a tabular format, you can write to the point and without usage of much word or grammar. Secondly, it brings out the differentiation or points of differentiation very clearly. And it also gives a fair idea to the examiner that on how many points or on how many bases you have differentiated between the two items. So if we talk about differentiation between realization and revaluation account, so we can differentiate them on 5 different bases. The first one is purpose. The purpose of preparing revaluation account is to ascertain the profit or loss on the revaluation of assets and liabilities. Whereas the purpose of preparation of realization account is to ascertain profit or loss on the disposal of assets and payments of liabilities. तो अगर हम रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम हमेशा ये जानने के लिए बनाते हैं कि जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी कि जब हम उनकी कीमत का पता दोबारा से लगा रहे हैं, या हमारे जो एसेट्स हैं वो पुराने हैं, या जो हमारी लायबिलिटीज हैं आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू है, या हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के बराबर है या नहीं है. तो जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे, जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू का पता लगाएंगे इन अकॉर्डेंस टू द मार्केट कंडीशंस और इन लाइट ऑफ द मार्केट वैल्यू, तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि या तो हमारे एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो ज्यादा निकलेगी और लायबिलिटीज की वैल्यू कम निकलेगी, या हमारे एसेट्स की वैल्यू कम निकलेगी और लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा निकलेगी. तो जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हैं. लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ये पता करने के लिए कि जब हम अपने सारे एसेट्स बेच दे रहे हैं और अपनी सारी लायबिलिटीज पे कर दे रहे हैं, तो उसके बाद में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो अगर हमें अपने एसेट्स बेच के ज्यादा पैसे मिले और लायबिलिटीज हमारी कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमें एसेट्स बेच के कम पैसे मिले और लायबिलिटीज हमारी ज्यादा है तो हमारे को लॉस होगा. सिचुएशंस when it is prepared. Revaluation account is prepared in case of reorganization or reconstruction of firm, that is admission, retirement and death of a partner. Whereas
द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम ये कब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट? हम जब भी हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि हम उसको दोबारा से बना रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को। और ये रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन किन किन केसेस में होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी कभी हम किसी नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में, या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट हम सिर्फ और सिर्फ तब बनाते हैं जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। Transfer of profit and loss. Profit or loss on revaluation is transferred to old partners' capital account in their old profit sharing ratio in case of admission, and to all partners' capital account in case of retirement or death of a partner. And in case of revaluation account, in case of realization account, in case of dissolution, profit or loss on realization is transferred to all partners capital account. अब हमने ये तो अभी डिस्कस किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट दोनों का ही रिजल्ट जो होता है, एंड रिजल्ट, वो प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, तो उस केस में जब अगर किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। और जो हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस है, उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेथ या रिटायरमेंट के केस में बना रहे हैं, तो वहां पे हम जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन के केस में भी हम सारे पार्टनर्स में डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको हम सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेपिटेशन ऑफ अकाउंट्स. This account, that is revaluation account, is repeated many times during the lifetime of business, whereas realization account is prepared only once during the lifetime of the business. जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हमें पार्टनरशिप फर्म के लाइफ टाइम में कई बारी बनाना पड़ सकता है। जब भी जितनी भी बार हम कोई नया पार्टनर एडमिट करेंगे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, जितनी बारी भी उतनी बारी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इसका कोई फिक्स नंबर ऑफ अकरेंस नहीं है कि हम एक पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, 10 बार बनाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द events taking place in the partnership firm during its lifetime, whereas realization account is prepared only once during the entire life cycle of the partnership firm, and that is at the end of the partnership firm. तो पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनता है, और वो भी जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही होती है तब बनता है। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स. अगर हम क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शोन इन दिस अकाउंट आर नॉट क्लोज्ड. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट दिखाते हैं उनको हम क्लोज नहीं करते हैं, बल्कि उनका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। जबकि अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स आर क्लोज्ड. तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो सारे हमारे क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज प्रीटी मच अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स. तो यहाँ पे बाय व्हाट आई मीन बाय स्पेशल आइटम्स आर, जो नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज है उनका तो हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने सेकेंड सेशन में। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल आइटम्स की बात कर रहे हैं,
और ये वो आइटम्स हैं जो कि हर बैलेंस शीट में या हर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Sometimes certain items such as advertising, suspense or expenditure or any other capitalized value of revenue expenditure appears at the asset side of balance sheet. These items should be transferred to the debit side of partner's capital account in profit sharing ratio and closed. जो भी deferred revenue expenditure का account होगा वो हमेशा asset side पे दिखेगा हमारे को बैलेंस शीट में। और हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। गुडविल। अब गुडविल के बारे में दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये है कि इफ गुडविल appears at the asset side of balance sheet, it should be transferred to the debit side of realization account and thus closed. If anything is received against goodwill, it will be recorded at the credit side of realization account as by cash account. If goodwill is taken by a partner, his capital account will be debited and realization account is credited. तो पहला सिनेरियो क्या है कि हमारे बैलेंस शीट में गुडविल का अकाउंट शो कर रहा है एसेट साइड पे। तो अगर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। अगर हमने गुडविल को सेल किया और उसको सेल करके हमारे को उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मिला, तो हम क्या करेंगे, उसको रियलाइजेशन जो अमाउंट हमने रियलाइज किया है फ्रॉम द सेल ऑफ गुडविल उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और उसकी एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट। जैसे कि हम किसी और एसेट को सेल करके जब उसके सेल प्रोसीड्स को रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इन केस अगर किसी पार्टनर ने गुडविल को एज्यूम कर लिया, कोई पार्टनर ने गुडविल को ले लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जस्ट लाइक वी विल ट्रीट दिस सेम एज एनी अदर एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो जैसे किसी पार्टनर ने जब कोई एसेट एज्यूम किया होता है या कोई पार्टनर किसी एसेट को ले लेता है, उस टाइम पे जो हम ट्रीटमेंट करते थे वही ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सेम करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है, इफ द गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट बट इट इज सोल्ड और टेकन बाय अ पार्टनर, कैश और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही है, जस्ट लाइक एनी अदर अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन उससे अगर हमें कुछ पैसा मिला है तो वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और कैश या पार्टनर के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। सो अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट, एंड इफ द गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर अनरिकॉर्डेड एसेट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट की दो चीजें हो सकती हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अगर तो वो लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है, दैट मींस पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो हम पार्टनर के करेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर पार्टनर के करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, दैट मींस इट इज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, तब भी हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इन नटशेल वी कैन से दैट the balance of partner's current account, if it's appearing on liability side, it will be transferred to the credit side of partner's capital account, and if it is appearing on the asset side, then it will be transferred to the debit side of partner's capital account. Accumulated profit or loss. Accumulated profit in the name of reserve, reserve fund, general reserve, retained earning, contingency reserve,
profit and loss account, credit balance or appearing at the liability side will be transferred to the credit side of all partners capital account in their profit sharing ratio. जितना भी accumulated profit होगा, अब वो accumulated profit का मतलब है undivided profit या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड या accumulated प्रॉफिट है उसको वो बैलेंस शीट में अलग अलग नाम से हो सकता है। वो रिजर्व के नाम से हो सकता है, जनरल रिजर्व के नाम से हो सकता है, रिजर्व फंड के नाम से हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग के नाम से हो सकता है, कंटिजेंसी रिजर्व के नाम से हो सकता है, या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी हो सकता है, लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, इस टाइप का कोई भी अगर अकाउंट होगा तो उसको हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एसेट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब अगर आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से अकाउंट शो हो रहा है, तो देयर कैन बी टू सिनेरियोज। सिनेरियो नंबर वन, देयर वुड बी अ एसेट named as investment appearing on the asset side of the balance sheet. Then in that case what we will do is it will be appropriate to transfer the investment fluctuation fund or reserve to the credit side of realization account. तो अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से एक अकाउंट लाइबिलिटी साइड में आ रहा है और दूसरा एक अकाउंट इन्वेस्टमेंट के नाम से अगर एसेट साइड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। The second scenario would be in case investment is not appearing at the asset side, investment fluctuation reserve or fund should be treated as undistributed profit and credited to all the partners capital account in their profit sharing ratio. अगर आपके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से अकाउंट है appearing on the liability side but there is no asset appearing on the asset side as named as investment, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंट है या इसका जो बैलेंस है हम इसको ट्रीट करेंगे एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और हम इसको सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड द एंट्री विल बी डन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड है और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड लाइबिलिटी साइड पे है और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड के नाम से अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है ऑन द एसेट साइड, तो हम इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन, उसकी एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिस विल बी डन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इसका भी ट्रीटमेंट जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व का ट्रीटमेंट किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें भी दो सिनेरियोज होंगे। इफ देयर इज अ प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व and there is a asset appearing as plant and machinery on the asset side, तब तो plant and machinery replacement reserve accounts balance should be transferred to the credit side of realization account. And in case there is no plant and machinery account on the asset side and we only have plant and machinery replacement reserve appearing on the liability side in the balance sheet, then this again will be considered as a undistributed profit and will be transferred to the credit side of all the partners capital account in their profit sharing ratio.
तो प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है और उसके करस्पॉन्डिंग एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नहीं है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व का जो भी बैलेंस होगा उसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है, इफ this item appears at the asset side along with creditors at the liability side, it should be transferred to the debit side of realization account. In case creditors do not appear at the liability side of the balance sheet, reserve for discount on creditors will be transferred to the credit side of all the partners capital account in their profit sharing ratio. So जितने भी रिजर्व्स हैं उनका ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है और लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और इन केस नहीं है तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रोविडेंट फंड, provident fund is a liability towards workers, so it will be transferred to the realization account and its payment will be made. अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड के नाम से अकाउंट आता है, तो प्रोविडेंट फंड जो है ये एक आउटसाइड लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द वर्कर, और इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जस्ट लाइक एनी अदर आउटसाइड लाइबिलिटी, और फिर हम उसका पेमेंट करेंगे। सो with this we come to the end of second topic that we were supposed to discuss today, that is treatment of special items. Now let's move on to topic number 3, that is key points that you should remember while dealing with a question related to dissolution of partnership firm. First, realization account is a nominal account with the rule of debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था डेबिट और क्रेडिट का, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। सो इन केस अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आता है एंड यू आर नॉट श्योर कि उसको आपको कैसे डील करना है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है। अगर तो वो एक्सपेंस या लॉस है तो आप उसको डेबिट साइड में एंटर करोगे, और अगर वो इनकम या गेन है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे इन रियलाइजेशन अकाउंट। If the question is silent about the realization of an asset, it is assumed that the asset does not realize any amount. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बैलेंस शीट में एक एसेट है, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ₹10,000, तो बैलेंस शीट में तो उसने दिखा दिया कि फर्नीचर और फिक्सचर्स अकाउंट का जो बैलेंस है विच इज एन एसेट, उसकी वैल्यू है 10,000, या फर्नीचर और फिक्सचर्स की जो बुक वैल्यू है वो है ₹10,000। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन के एंड में, जहां पे ये सारी डिटेल्स होती है कि किस एसेट के अगेंस्ट हमें कितना पैसा मिला, अगर वहां पे फर्नीचर और फिक्सचर्स मेंशन नहीं है कि फर्नीचर और फिक्सचर्स बेच के हमें कितना पैसा मिला, या फर्नीचर और फिक्सचर्स को किसी पार्टनर ने एज्यूम किया या नहीं किया, अगर इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्नीचर और फिक्सचर्स के अगेंस्ट हमें कोई पैसा नहीं मिला है। That means that asset has not realized any amount. Third point is, if the question is silent about the payment of a liability, it has to be paid out in full. तो अगर एसेट्स के केस में ये है कि अगर उस एसेट से कितना पैसा मिला अगर ये मेंशन नहीं हो, तो हम ये मानते हैं कि उस एसेट
के अगेंस्ट हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला। लेकिन लाइबिलिटी के केस में ये उल्टा है। से फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन देयर इज अ आइटम ऑन द लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेबल ₹5,000, बस इतना लिखा हुआ है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं लिखा है कि बिल्स पेबल के अगेंस्ट में हमने 4,000 दिए, 3,000 दिए, 2,000 दिए, या किसी पार्टनर ने वो बिल्स पेबल एज्यूम किया। इस तरीके की कुछ कोई भी चीज मेंशन नहीं है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने बिल्स पेबल के अगेंस्ट ₹5,000 कैश में पे किए हैं या बैंक से पे किए हैं। तो एसेट्स के केस में इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन अमाउंट, वी विल एज्यूम दैट nothing has been realized against that particular asset. And if the question is silent about the amount paid against a particular liability, then we will assume that the particular liability has been discharged at its book value. यानी कि जो भी बैलेंस शीट में उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जितना भी अमाउंट लिखा था, हमने उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट उतना ही अमाउंट पे किया है। लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर विल बी पास थ्रू द कैश और बैंक अकाउंट। अब पार्टनरशिप फर्म के केस में हमें पता है कि कई बारी जो पार्टनर्स हैं उनसे पार्टनरशिप फर्म लोन लेती है। तो अगर पार्टनर से आपने लोन लिया है तो वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाओगे, आप उसकी एंट्री सीधे कैश या बैंक अकाउंट में करोगे। एंड लोन गिवन टू अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड और डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है तो उस लोन को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज अ नेगेटिव बैलेंस टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से अगर आपको कोई लायबिलिटी दिख रही है तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। दो बैंक इज अ थर्ड पार्टी और आउटसाइड, बट वी विल नॉट ट्रीट दिस लाइक एज एनी अदर आउटसाइड लाइबिलिटी। हम इसको बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। बैंक लोन्स मस्ट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर बैंक लोन लिखा हुआ है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, एंड bank loan will be transferred to the realization account and will be treated like any other outside liability. So these are some of the points that you should be keeping in your mind while dealing with the questions related to dissolution of partnership firm. Now, on this slide, we have presented the entire chapter in a nutshell. What it says, it will be observed that all the items appearing in the balance sheet are transferred somewhere once only. That means जो भी आइटम आपके बैलेंस शीट में, चाहे वो एसेट्स हो लाइबिलिटीज हो, उनको हम सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर करेंगे। जितने भी assets shown assets show debit balance, so assets are transferred to the debit side of different accounts. Cash at bank is transferred to the debit side of cash account, and other assets are transferred to the debit side of realization account. Assets जो भी है वो सारे डेबिट बैलेंस शो करते हैं, तो उनको हम डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। वो डिफरेंट अकाउंट कौन से हैं? जो बैंक बैलेंस होगा वो हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में, और बाकी के बैंक के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स होंगे उन सभी एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये हम सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस, सो दीज आर ट्रांसफर्ड एट द क्रेडिट साइड. Creditors and outside liabilities are transferred to the credit side of realization account, and balances of current accounts are normally transferred to the credit side of capital account. तो लाइबिलिटी अकाउंट जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारा क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, तो उनको हम क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज जितनी भी हैं उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, और बैलेंस अगर पार्टनर का करेंट अकाउंट है और उसका क्रेडिट बैलेंस है, जो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे भी वन टाइम ट्रांसफर है। उसके बाद
It will also be seen that items appearing outside the balance sheet are transferred at two places. Remember, in 11th standard, you must have studied one chapter, balance sheet and its adjustments. तो बैलेंस शीट एंड इट्स एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि जो भी आइटम्स हमारे बैलेंस शीट में होते थे, ट्रायल बैलेंस में होते थे, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट वाला चैप्टर था, उसमें जो आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस में होते थे वो तो कहीं एक ही जगह जाते थे। दैट मीन्स या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे या बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन जितने भी एडजस्टमेंट्स होते थे वो हमेशा दो जगह पे होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो आइटम हमारे बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं वो तो एक ही जगह पे जाएंगे, चाहे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाए, चाहे वो कैश अकाउंट में जाए, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए। लेकिन जितने भी आइटम हमारे एडजस्टमेंट में, यानी कि जो बैलेंस शीट के बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम्स दिए हुए हैं वो हमेशा दो जगह पे आएंगे। जैसे sale proceeds of assets are transferred at the credit side of realization account and are also on the debit side of cash account. तो जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो सारे के सारे दो जगह पे जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे? उनसे जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सेल करके जो हमारे पास पैसा आएगा वो एक तो जाएगा हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरा जाएगा हमारे कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे। इसी तरह से पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर शोन एट द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल्सो एट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। अगर हमारा कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई क्रेडिटर है, कोई आउटसाइड लायबिलिटी है विच इज नॉट रिकॉर्डेड, which is not recorded means which has not already appeared in the balance sheet, that's why it is considered as unrecorded। तो उसकी भी एंट्री दो जगह पे होगी। तो जब हम उस लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे होंगे तो उस लाइबिलिटी का पेमेंट करते टाइम हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे उसकी एंट्री करेंगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम उसका एंट्री करेंगे। इन द सेम वे refund of capital to partner is shown on the debit side of partners capital account and credit side of cash। इसी तरीके से जब हम पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं तो उसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और क्रेडिट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। Once this is done, it will be ascertained that double entry records are completed at each and every stage. As a result, the debit and credit total of cash account is automatically equal to each other। If you remember this, in one of my sessions, I guess in first session itself, I have discussed this thing that to ascertain or to be sure that the way you have solved the question related to dissolution of partnership firm is correct or not, उसका जो टेस्ट है वो ये है कि लास्ट में हम डेसोल्यूशन का जब क्वेश्चन करते हैं तो उसके सबसे लास्ट में जो हम अकाउंट बनाते हैं वो होता है हमारा कैश अकाउंट। और अगर हमारे कैश अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आ गया, दैट मीन्स हमारे कैश अकाउंट का जीरो बैलेंस है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। और अगर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आए या क्रेडिट बैलेंस आए, कोई भी बैलेंस आए, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं गलती की है। सो दिस इज ऑल अबाउट dissolution of partnership firm। Just for your information or for your reference, we have presented here the format of partners capital account। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज नॉर्मली होती हैं और वो किस लिए होती हैं वो इस स्लाइड पे हमने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद वाली स्लाइड पे हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट का फॉर्मेट दिया है और लास्ट स्लाइड पे हमने कैश अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर series of 3 videos in relation to dissolution of partnership firm। Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button and do subscribe to our channel. And when you are subscribing,
Please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connect2letsmaster@gmail.com, and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.